our director sir, Srinivas sir, and faculty of Bone and Plastic, other department faculties, our staff and public who has spared their valuable time to listen to the lecture. So, Bone and Plastic block was inaugurated on 18th January 2021 and since then dedicated to serve the nation. The center provides state-of-art comprehensive care for both burns and plastic surgery patients. This facility is 100-bedded 24/7 burn care and plastic surgery care. First of all, I think give a big hand to the team which has done this. This is something which is very important. Not only the skin bank, the exclusive plastic surgery, this thing, and the public awareness program. All this is something which is very important because what happens in all India Institute of Medical Sciences is we are into only the so-called patient care, teaching, learning, research, and all. And this is also very important because we have to reach out to the masses. The more we reach out to the people, especially on an issue of organ donation, skin banking and other things, I think the success of ours, especially for the patients who need, will be very high. Well, it's a lot of feathers today. We could see that NABH again, first of its kind for the AIIMS, and it all started from this particular block. And then today again, public awareness, the skin bank, a lot of activities which Dr. Manish Singhal and his team is doing. This is a great thing. And then I always look into the team spirits which the people carry it, right from the people who are working. Because, most of the good works happen with the team spirit. And this is something very important, especially for surgeon. We need to be very good with our own team, with our own nursing faculty, the ORAs, OTAs, and the engineering section and everybody. This is something which is very important for all of us. I think we need to learn from here that, this is something which the All India Institute of Medical Sciences, the main hospital also should look into that. So I once again, welcome Professor Singh sir, doyen of plastic surgery, and then a great person, and then the panelists, and you carry forward the message today so that we become a center to propagate that information to the patients and then get whatever the success we have. And already the NABH is in the feather in the cap for us. With this, again, welcome all of you, and congratulations to all of you for this, whatever the great things and initiatives with this institution has done. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the Honorable Director Sir, dignitaries of and on the dais, it is my opportunity today to speak about skin banking and burns, which is very close to my heart and very close to my entire team. So basically, there is a critical issue which we have to understand, which is plaguing our society, is the incidence of burns. The incidence of burns is huge, and we are our homes, we don't understand how much it is, and it is huge incidence, and we are treating almost 1,500 patients every year. And it is a matter of great concern, not only for the patient. We have many virtual patients, the entire family suffers. And you will not believe, this is very, very high mortality. This burns condition is very high mortality. And at AIIMS, we are trying our best to provide maximum care under leadership of our director sir and administration. Our team is very trained, our ICUs are very good, we have huge support from all the departments. But the ray of hope, which this severe burns, doesn't stop here. It is very difficult still to make in the best of the setups to survive these patients. And the reason is that we don't have anything to cover them. We have nothing to put immediate relief to them, to cover them. Even in the well-equipped center, in absence of donated skin, the patients are going to die. This is something which we cannot, is non-negotiable. Now, how to get their skin? Sadly, the lack of awareness of skin donation is making the skin banks very non-functional all over India. It is very dismal situation that the banks are there, but the skin donation is not happening. And I'm sure that many individuals who are willing to contribute, willing to donate the skin, don't know how to do it. They don't know how to do that process. And I'm sure that with this gap of knowledge, we are trying to cover that gap of knowledge and understanding, and we have very honorable members of the society who are looking willingly, doing
lot of work in this field, and thank you very much for joining. Thank you everyone. And we need to inspire and motivate individuals to go into the skin donation program, and it is extremely difficult and very challenging, and I'm sure, but we will definitely be able to succeed. And the NGOs and non-profit organizations can definitely close this huge barrier which we face. And once we have the skin donation program, which is very active, we have our ex-president A.K. Singh sir, and I'm sure many plastic surgeons are ready to take the endeavor of skin bank. The only thing which stops them in opening the skin bank is the donation program. And I'm sure once we have a strong donation program, a strong method of increasing donation, I'm sure many more banks will open, and we will have very, very robust infrastructure. With this, I will make a very small presentation. Okay? तो स्किन बैंक जो है बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना में आपको लाल रंग दिखेगा ये, और 7 मिलियन बर्न, करीब 60 से 70 लाख बर्न जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, इतने बर्न हमारे पास होते हैं, और करीब 1.5 लाख डेथ होती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 मिनट में एक बर्न पेशेंट इंडिया में आज की तारीख में हम नहीं बचा पाते हैं। और इसके अलावा 2.5 लाख को डिसेबिलिटी होती है, जो कि उनके डेली काम वो नहीं कर पाते हैं। हम अपना अगर एम्स का ही डाटा लेंगे तो करीब 1500 बर्न हमारे पास आते हैं, जिनमें से मेजर 1000 के आसपास आते हैं, बच्चों में बहुत कॉमन है। अब ये जो मैंने LA50 यहाँ पे लिखा है 55 से 60%, इसका मतलब ये है कि करीब 55% का पेशेंट हमारे पास आता है फौरन जलने के बाद बिना इन्फेक्शन लिए, तो करीब 50% चांस है कि वो बचेगा। 55 से 60%, 50% चांस है कि हम उसको नहीं बचा पाएंगे। अब ऐसा क्यों है, आप देखेंगे तो ये ग्राफ है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑरेंज लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है हमारी है डेवलपिंग कंट्रीज की, और ये जो है ऑरेंज लाइन, और जो ग्रे लाइन है फॉरेन और डेवलप्ड कंट्रीज की है। आप देखेंगे तो 60% के आसपास बहुत यंग पेशेंट अगर होगा तो शायद वो 60 के आसपास बचा पाए हम, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी करीब 40 साल के आसपास हम 55% बर्न को ही बचा सकते हैं। और विदेशों में यही जो है रकम जो है 90%, 95% के आसपास है। यानी कि अगर उनके पास 60 से 70% बर्न भी आएगा, 60 से 80% बर्न भी आएगा, तो इतना उनका बचने का चांस है, जो कि हमसे इतना गैप है। ये जो गैप है बेसिकली, जो इतना बड़ा गैप है करीब 20-30% बर्न का, इसको पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ट्रेनिंग चाहिए, बड़े सेंटर चाहिए, पेशेंट का एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। अब हमने ये सब ऑटोमेटिकली इसको अचीव कर लिया है, लेकिन अभी भी हम आगे इसको नहीं जा पा रहे हैं लेके, क्योंकि हमको चाहिए अभी स्किन डोनेशन। जैसे हमने बोला, इसको बोलते हैं अर्ली एक्सीजन और कवर, मतलब हमने बर्न का जो जख्म है, जो जल गया है, उसको हमको हटाना है सर्जरी से, और उसकी जगह हमको एक स्किन लगानी है, जिससे कि वो स्किन जो है उसकी पानी की जो इवेपोरेशन है उसको कम करे, उसके पेन को कम करे, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि क्या है कि जैसी इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो उनका जो लॉस है उसको हमको कवर करना है, जो स्किन के माध्यम से हम कवर कर सकते हैं। तो ये जो स्किन बैंक है, ये हमें वो स्किन देते हैं जिससे हम उसको बचा सकते हैं। अभी अब कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि इसको हम आर्टिफिशियल स्किन भी तो बना रहे हैं आज की तारीख में, उससे क्यों नहीं इसको हम कवर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इसको, हम इस पर आते हैं, तो एक जो व्यक्ति अगर हमको एवरेज ले, हम थिन बिल्ड में करीब 1500 के आसपास और हैवी बिल्ड में करीब 5000 के आसपास स्क्वायर सेंटीमीटर स्किन हम ले सकते हैं, जिससे हम कम से कम बोल रहा हूँ आपसे मैं, एक एडल्ट और एक बच्चे की हम जान बचा सकते हैं एक विक्टिम से। अगर मैं एडल्ट की बात ना करूँ तो करीब 4 से 5 बच्चों की हम जान बचा सकते हैं, एक एवरेज बिल्ड की मैं आपसे बात करूँ तो अब प्रॉब्लम है उसकी एक्सेसिबिलिटी की। जैसे कि मैंने बताया, बैंक की सुविधाएं कम हैं और आर्टिफिशियल स्किन की अवेलेबिलिटी कम है। मैं इस पे आता हूँ, और अवेयरनेस जो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक्सेसिबिलिटी की हमने एक स्टडी की बेसिकली अब से करीब 3-4 साल पहले, और ये छपी है वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल में। तो करीब 75% हमारी पॉपुलेशन जो है वो बर्न सेंटर के 2 घंटे के अंदर रहती है। यानी कि अगर किसी को जलेगा तो 2 घंटे के अंदर वो बर्न सेंटर पे पहुंच जाएगा, जहां उसकी जान बचने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन हम स्किन बैंक पे आएंगे तो करीब 15% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो स्किन बैंक के आसपास रहती है। तो आप देखेंगे तो स्किन बैंक की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो वो जो बाकी 85% है, उनके पास जान बचाने का कोई जरिया ही नहीं है, क्योंकि वो सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो बर्न सेंटर तो जाएंगे,
लेकिन अगर बैंक की आवश्यकता है तो वहां पर उनको एक फुल स्टॉप लग जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा स्किन बैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा अलग है। देखेंगे तो साउथ के जो स्किन बैंक है करीब इस, अगर हम ये लाइन खींच दें तो नीचे के स्किन बैंक है करीब 4 या 5 साल से चल रहे हैं। अभी रिसेंटली जयपुर में और इंदौर में और बाकी एक कटक में या भुवनेश्वर में, एक दिल्ली में ये स्किन बैंक अभी आए हैं। तो स्किन बैंकिंग का जो प्रोग्राम है नॉर्थ इंडिया में बहुत नया है, ये बहुत नया है। और ये जो पूरी बैंक का लाइसेंस हमारे पास अभी इस हफ्ते आने की उम्मीद है। थोड़ा बाढ़ की वजह से दिल्ली सेक्रेटेरिएट बंद हुआ है, बट हमको लाइसेंस आने के बाद जो हमारा सबसे बड़ा डर है वो है कि प्रोग्राम को हम कैसे चलाएंगे। तो इसीलिए हमने ये आज का प्रोग्राम रखा जिससे हम एक मैसेज दे सके कि क्या प्रॉब्लम आने की क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्किन डोनेशन में कोई हमको ब्रेन डेड डोनर की आवश्यकता नहीं है, हम मृत्यु के पश्चात भी उसको ले सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन के आंसर भी हम करेंगे। और एक आर्टिफिशियल स्किन को अगर हम लेंगे तो एक 4 × 5 सेंटीमीटर की इंच की जो कॉस्ट है करीब 87,000 रुपये आज की तारीख की मार्केट में है, और वही हम स्किन में 350 रुपये में उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो आप देखिए कॉस्ट का कोई मैच नहीं है, मतलब हम इसको हम कभी नॉन कंपेरेबल है ये। तो ये ब्रिज हम गैप कर ही नहीं सकते हैं बिना स्किन बैंक या बिना स्किन डोनेशन के। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल का। सिंगापुर एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ बर्न का ज़्यादा इंसिडेंस नहीं था। उन्होंने स्किन बैंक तो खोला 98 में, लेकिन उन्होंने डोनेशन पे फोकस नहीं किया ज़्यादा क्योंकि उनके बर्न आते ही कम है। तो 2002 में जब बाली बॉम्बिंग हुई तो उनके पास स्किन अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने यूएसए से करीब 25,000 स्क्वायर सेंटीमीटर स्किन उन्होंने यूएसए से मंगाई। फिर उनको समझ में आया कि अब जो है वो मुश्किल है, तो उन्होंने मैसिव कैंपेन किया। 2002 में शुरू किया, 3 में फिर एक जकार्ता में बॉम्बिंग हुई, फिर उनको थोड़ी दिक्कत पड़ी। 2004 में उन्होंने एक आर्टिकल छापा है, देखेंगे आपकी इम्पैक्ट ऑफ स्किन बैंकिंग, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगाया है। फिर 2005 में एक और बाली बॉम्बिंग हुई, उसमें वो सेल्फ सफिशिएंट। तो देखिए कि छोटी सी कंट्री एक पूरे रीजन को कैटर कर रही है, वो अपने सिर्फ डोनेशन के अवेयरनेस से इसको वो कर पाए। बैंक तो उनके पास है लेकिन अवेयरनेस नहीं है तो स्किन आएगी नहीं वहाँ पे। ये एक छोटा सा हमने वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं कि स्किन कैसे निकालते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, तो इससे आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर हम जरा क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे। Let us take you through the process of skin banking. Whenever a call is received from a deceased person's relative who is willing to donate skin, the skin bank personnel collect their details. कहाँ से हैं? अच्छा, कब हुआ है? अच्छा, आप मुझे डिटेल्स बता दीजिए। Any person above 18 years of age can donate their skin within 6 hours of death. Only those suffering from HIV and hepatitis B or C, generalized infections and malignancy cannot donate. The skin is retrieved from the back, thighs and legs of deceased person. The parts are dressed and covered respectfully and handed over to the relatives. At the same time, blood samples are also collected to test for viral markers. The skin is directly placed in 50% glycerol containing jar and then brought to the skin bank in an ice box. In phase 1, the harvested skin is brought back to the skin bank and refrigerated for up to 24 hours. Within these 24 hours, phase 2 begins, in which the stored skin is transferred from 50% glycerol to 85% glycerol container. All the handling is done with utmost sterility in a biosafety cabinet with laminar flow to minimize infections. The jar is then labeled and placed in an orbital shaker and rotated for 3 hours at 33 degrees Celsius. This skin is kept in a walk-in refrigerator at 4 degrees Celsius for 3 weeks. After the 3 weeks, in phase 3, the stored skin is measured and meshed. Small
pieces of skin are collected separately in culture broth for microbiological analysis. The skin sample for microbiological culture are kept at room temperature for the fungal culture and in an incubator for the bacterial culture. The meshed allograft is again stored in 50 milliliters labeled containers and stored in walking refrigerator. In case the culture is positive, the skin is cleaned and moved to a fresh bottle and once more kept for 3 months. This process is repeated 2 more times. If 3 such cultures are positive, the skin must be discarded. If the culture is negative, skin can be used for allografting. It is issued to a burn patient and transported to the OT when required in ice boxes while maintaining the cold chain, which can finally be used to save someone's life. कौन लोग अपनी स्किन दे सकते हैं मैम कि हम किससे वो स्किन ले सकते हैं? स्किन बैंक किसी भी डोनर जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा वो स्किन डोनेट कर सकता है। उसका लेकिन कुछ स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होते हैं। स्किन डोनेशन नॉर्मल डेथ जिसको कार्डियक डेथ लोग मानते हैं उसमें डोनेट की जा सकती है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्क्रीनिंग में थोड़ी सी हिस्ट्री ली जाएगी, फैमिली का जो डोनर है उसका बिहेवियर पैटर्न क्या था, मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, कोई डिजीजेज ऑलरेडी इस्टेब्लिश तो नहीं थी। उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए जानकारी, क्योंकि हमारे यहाँ ना NGO के काफ़ी हमारे साथ जो कोलैबोरेट कर रहे हैं हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, उनको बताने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें, क्योंकि टाइम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 6 घंटे का टाइम है, तो टाइम ऑफ डेथ, कॉज क्या है डेथ का, कोई इन्फेक्शन तो नहीं थी, सेप्टिसीमिया तो नहीं था, कोई कैंसर तो नहीं था, एक हिस्ट्री थोड़ी सी लेनी पड़ती है इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि इसकी डोनेशन हो सकती है। फिर उसके बाद एक फॉर्म भरना होगा, कंसेंट फॉर्म है जो हमारे जैसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एग के अंदर टिश्यूज़ के लिए, हार्ट वॉल के लिए, बोन के लिए, कॉर्नियास के लिए टिश्यू का फॉर्म है, टिश्यू डोनेशन का। उसमें कंसेंट ली जाती है फैमिली से और फिर हम उसके बाद प्रोसीड करके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास एक डोनर है जो स्किन डोनेट करना चाहते हैं, एलिजिबल लग रहा है। तो यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी के एक्सपर्ट्स उसको आके असेसमेंट करेंगे, डोनर की क्लिनिकल क्राइटेरिया को और बाकी चीज़ों को, और फिर डिसाइड करेंगे हम इसको ले सकते हैं कि नहीं। मे बी आई शुड ऐड कि एक हमारे साथियों को ये बताने के लिए, जैसे बोन्स के लिए तो हमें बॉडी को हॉस्पिटल में लाना पड़ता है, पर इस केस में हम घर में कर सकते हैं। आप जानना चाहते थे ना? मेरा अगला सवाल है डॉक्टर राजा तिवारी से। डॉक्टर राजा, क्या जलने के अलावा कोई और कंडीशन में जिसमें हम स्किन को यूज कर सकते हैं? स्किन है कि किसी भी तरह की कंडीशन को यूज कर सकते हैं जहाँ पर भी स्किन का रिक्वायरमेंट है। बहुत ट्रॉमा वाले केसेस आते हैं जिसमें काफ़ी सारा स्किन निकल गया है, या फिर डायबिटीज के अल्सर्स हैं, नॉन ईटिंग अल्सर्स हैं, कई सारी स्किन कंडीशन होती है जिसकी स्किन सारा निकल जाता है। तो उसमें भी अगर पेशेंट की खुद की स्किन हम नहीं ले सकते तो वे टेम्प्रेरी पीरियड में टिश्यू कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए स्किन बैंक से लगा सकते हैं। अगला सवाल है मेरा डॉक्टर शशांक चौहान से। डॉक्टर चौहान, क्या हम ये कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कहाँ से हमारे पास स्किन आई है और हम किसको दे रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को? जी, ये जितने भी पेशेंट्स रिलेटेड जितने भी उनके आइडेंटिफिकेशन या जो भी उनका डेटा है वो कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहता है। हमारे जितने स्किन बैंक में होता है वो सारा का सारा कॉन्फिडेंशियल होता है, जो भी स्किन डोनेशन घर से होता है जी। और इन केसेस जहाँ पर अगर कोई संस्था डोनेट करती है तो वो डेटा उनके पास होता है क्योंकि वो संस्था है। बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे इस तरफ से, स्किन बैंक की तरफ से कोई भी डेटा कहीं पे नहीं जाता। इवन जहाँ पर स्किन हम जहाँ पर इशू करते हैं कहीं पे OT में या किसी पेशेंट को जिसको स्किन लगनी होती है उसको भी इस बात का पता नहीं होता कि ये स्किन एक्चुअली कहाँ से आई है और किधर से आई है। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर तनु सागर से। डॉक्टर तनु, क्या जो स्किन निकालते हैं पेशेंट से, मतलब कैडेवर डेड डिजीज से, क्या उसको इमीडिएटली, वैसे वीडियो में लोगों ने जाना, लेकिन क्या इमीडिएटली उसको लगा सकते हैं? कितना टाइम लगता है करीब उसको यूज़ करने में हमको? जो हम स्किन निकालते हैं वो इमीडिएटली उसे नहीं लगा सकते, उसको हमें लैब में जो हमारी स्किन बैंक है उसमें हम उसको प्रोसेस करते हैं।
तो प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं एंड फिर हम उसको स्टोर करते हैं। बेसिकली प्रोसेसिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारी स्किन की जो कंडीशन है, जो भी स्किन नीड है, उसकी क्वालिटी देखने के लिए, प्लस कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो हमें इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको हमें ट्रीट करना होता है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि रेसिपिएंट को इन्फेक्शन जाए। तो लगभग इस प्रोसेस में 6 से 7 हफ्ते हमें लग जाते हैं, उसके बाद ही स्किन को हम दे सकते हैं। बाकी स्किन हम 5 इयर्स तक हम स्टोर कर सकते हैं। अगला सवाल है मेरा डॉक्टर अभिलाष से। डॉक्टर अभिलाष, क्या मेडिको लीगल केसेस या कोई अननोन कॉज ऑफ डेथ है उसमें ले सकते हैं, और क्या मॉर्चरी में सुविधा हम ले सकते हैं स्किन की? हम मॉर्चरी में ले सकते हैं हम स्किन क्या? डेफिनेटली सर, जो भी केसेस है, मेडिको लीगल केसेस है या कोई पुलिस केस हुआ है या कोई क्राइम हुआ है, उस केस में भी जब कंसेंट मिलता है स्किन डोनेट करने के लिए हम स्किन ले सकते हैं। और कभी भी वार्ड से या पहले ही ले लिया, डॉक्टर ने जस्ट डॉक्यूमेंट करना है कि हमने ये स्किन डोनेशन दिया है एंड ऑलरेडी जो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म किया है कि हम स्किन को हम लगा देते हैं डोनेट करने के बाद किसी बर्न पेशेंट के ऊपर, तो उसका होता क्या है? उसका कलर मैच, उसका कुछ SLA मैच या कुछ उसका कुछ मैचिंग हम करते हैं लगाने से पहले, या उसको हम थोड़ा जब हम स्किन किसी से लेके किसी और को लगाते हैं तो अनलाइक दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं हम कोई SLA मैचिंग नहीं करते, और ये स्किन लगाने के बाद यूजुअली 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में रिजेक्ट हो जाते हैं बॉडी से। मगर कोई भी जो बर्न पेशेंट होता है इनिशियली एक शॉक के फेज में होता है, क्योंकि बर्न स्पेशली 40 या 50% बॉडी पर जली हुई होती है, तो वो बहुत बड़ा इंसल्ट होता है बॉडी के लिए, और बॉडी एक शॉक के स्टेट में चली जाती है। उससे बहुत सारा फ्लूइड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, और बॉडी को इस क्राइसिस से टाइड ओवर करने के लिए यूजुअली 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है। तो ये जो स्किन कवर है इनिशियल फेज में एक लाइफ सेविंग इंटरवेंशन की तरह काम करती है। एक बार हमारी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, बर्न पेशेंट की बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो टाइड ओवर कर ले इस क्राइसिस को, उसके बाद रिजेक्शन होने से भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इसीलिए किसी SLA मैचिंग की जरूरत नहीं है। थैंक यू। एक मेरा अगला सवाल है डॉक्टर राजा आपके लिए, कि जो कलर है स्किन का वो आधा कुछ थोड़ा सा तो दे दिया, वो मैच करता है पेशेंट के साथ, बाद में कलर चेंज होता है या? ये काफ़ी लोगों को भ्रांति होती है कि जो स्किन पेशेंट की स्किन की अपन लगाते हैं तो क्या वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, नॉर्मल जैसे दिखती है या नहीं। उसका आंसर है कि वो जो स्किन लगाते हैं वो बहुत पतली होती है, और इसीलिए वो जो फीलिंग होती है उसको अपना नेचुरल कलर मेंटेन नहीं कर पाती है, और समय के साथ साथ कुछ डार्कनिंग हो जाती है। तो इसलिए अगर किसी और की भी स्किन लगाते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर लाइटेड फोन में है, बट समय के साथ साथ उसका यूजली डार्क हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल स्किन होती है। जो एलोग्राफ जिसकी हम बात करें स्किन रिएक्शन करता है वो 2 हफ्ते के बाद पेशेंट की नॉर्मल स्किन हो जाती है। अगला सवाल मैडम आपके लिए मेरा है कि हम कितने टेम्परेचर पर कितने साल के लिए, शायद आपने बताया था लेकिन वो दोबारा आपने भी बताना। 1-2 क्वेश्चन मुझे एड्रेस करने थे। एक तो ये कि जो हम स्किन एक बार ले लेते हैं, बैंक में आ जाती है, तो उसको जल्दी से जल्दी कब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? तो 6 महीने के अंदर कर सकते हैं? हाँ मैम, जैसे कि अभी 2 महीने में तो हमारा प्रोसेसिंग टाइम भी है, तो हम चाहते हैं अर्लीस्ट उसको हम लगाएं। ऐसा नहीं है कि हम उसको पोस्टपोन करते हैं, लेकिन एक लाइफ है फिर भी हमारी। थ्योरेटिकली हम उसको 5-7 साल भी रख सकते हैं, लेकिन हमने उसको 5 साल का टाइम हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल टाइम है, पर मतलब पेशेंट जब डोनेट करता है उसकी अर्लीस्ट हम कब करा सकते हैं? अर्लीस्ट कब कर सकते हैं? अर्लीस्ट व्हेन यू कैन ट्रांसप्लांट? 6 months, 6 weeks. Okay, so 6 to 7 weeks the skin is so within say 1.5 से 2 महीने के अंदर हम जो डोनर की स्किन है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और जो सवाल आ सकता है वो मैं चाहूँगी आप ही एड्रेस कर दीजिए कि अभी तो हम थेरापेटिक रीजंस के लिए यूज कर रहे हैं बर्न्स में या मैसिव ट्रॉमा में, तो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए तो नहीं स्किन डोनेशन यूज होती है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हाँ, तो मतलब एक सवाल मैंने अपने पैनल में रखा हुआ है, तो मैंने डॉक्टर शिवांगी, तो क्या हम इसको कोई स्कार या कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए यूज कर सकते हैं स्किन को हम? सर, जैसा कि अभी डॉक्टर तिवारी सर ने ऑलरेडी बताया कि ये जो स्किन होती है इसका कलर मैच मोस्ट ऑफ द टाइम नेटिव स्किन के साथ नहीं होता, तो
कलर मिसमैच तो हमेशा रहता है, प्लस वो जो स्किन है वो एक पैच जैसी ही दिखती है, तो कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए फिलहाल इसका कोई रोल नहीं है, बट आगे विद टाइम जैसे दूसरा हमारे लिए ये बहुत प्रेशियस है जान बचाने के लिए, तो हम इसको इंटेंट नहीं करते कि कॉस्मेटिक के लिए कभी भी हम इसको आगे यूज़ करेंगे, तो हमारा क्योंकि उसके लिए हमारे पास आर्टिफिशियल स्किन वगैरह भी अवेलेबल है जो कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा मतलब हमारे इंडिकेशन में आता है, हमारे इंडिकेशन से बर्न आता है, लेकिन ये एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है उसका एक, तो उसको हम कॉस्मेटिक के लिए सिर्फ बर्न और लाइफ सेविंग के लिए ही हम उसको यूज़ करने का हमारा प्लान है। मैं कमेंट चाहूँगा डॉक्टर ए के सिंह सर के कि सर आपका कुछ सवाल या आपके कुछ कमेंट्स स्किन डोनेशन के बारे में। हमारे ख्याल से बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि डिपार्टमेंट ने लिया है, क्योंकि कहीं भी डोनेशन होता है उसके बारे में भ्रांतियाँ बहुत होती हैं, और ये बहुत आवश्यक है कि पब्लिक में उन भ्रांतियों से हम लोग एक निवारण पाएँ, और जब भ्रांतियों का निवारण होता है तभी फिर ये डोनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ये सब वॉलंटरी प्रोग्राम्स हैं, इसमें कोई कोएर्शन नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, तो उनका दिल जीतना, उनका मन जीतना, खासतौर से उस समय जीतना जिस समय वो पीड़ा में होते हैं, व्यथा में होते हैं, तो वो बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। तो बहुत अच्छा है इसके बारे में अवेयरनेस करना, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। स्किन बैंकिंग के बारे में, स्किन डोनेशन के बारे में बहुत चर्चा हो गई ये, और काफी विस्तृत रूप से हो गई। एक छोटी सी चीज हम और ऐड करते हैं कि हम लोग आज क्यों इकट्ठा हुए, क्यों एकत्र हुए। हम लोग हर साल एक प्लास्टिक सर्जरी डे मनाते हैं, दिवस मनाते हैं, और 15 जुलाई हम लोगों ने नियत किया था। उसी में हम लोग उस समय हम एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन के सेक्रेटरी थे, एक डॉक्टर आदर के प्रेसिडेंट थे। हम लोगों ने कहा कि बहुत सी अवेयरनेस की चीजें होती हैं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती, नहीं समझ में आता है। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हाथ में प्लास्टिक सर्जरी करनी है, हमें आंच में काम करना होता है, रोटी बनानी होती है, अच्छी प्लास्टिक लगाइएगा, गले नहीं। तो बहुत से लोगों को बहुत से कंसेप्ट्स नहीं होते हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, और नाम भी ऐसा है। परहैप्स ये नाम इसलिए आया है कि शायद जैसे प्लास्टिक को, जैसे प्लास्टिकॉस जो उनका ओरिजिनल वर्ड था, तो हम प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं, हम अलग अलग शेप दे सकते हैं। उसी तरह से शायद ये प्लास्टिक वर्ड हम लोग की स्पेशलिटी में आ गया कि हम शरीर की संरचना को काफी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वहां से प्लास्टिक आया। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए हम लोगों ने कहा एक प्लास्टिक सर्जरी डे मनाएंगे, लोगों की ये भ्रांतियां दूर करेंगे, और इस स्पेशलिटी के बारे में, जिससे बहुत से लोग इस स्पेशलिटी का ज्ञान न होने की वजह से बहुत से इलाज के लिए कहीं और भटकते रहते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है। हमें बहुत अच्छी चीज़ है कि इस बार स्किन बैंकिंग पे डॉक्टर साहब ने ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ये बहुत बर्निंग इशू है, और हमारे अधिकतर मरीज जो बर्न्स के हैं, शायद अगर आप हमसे पूछें कि बर्न में पिछले 20 साल में क्या एडवांसमेंट हुआ है, तो एक एडवांसमेंट हुआ था कि हम उसको कितना फ्लूइड चढ़ाएं, कैसे रिस्ट्रेट करें। वो शायद सबसे बड़ा हमारा एडवांसमेंट हुआ था बर्न में, जिससे हम बर्न को इनिशियली बचा पाते। लेकिन इनिशियली बचाने मतलब 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वो इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो जाती, तो उतनी सब मेहनत हम लोग की बेकार जाती थी, वो परेशान रहता, ऑब्वियसली फैमिली भी परेशान होती थी। दूसरी चीज जो बहुत बड़ा एडवांसमेंट हुआ है वो स्किन बैंकिंग या स्किन ग्राफ्टिंग से। तो उस समय तो हम इस चीज से बता सकते थे, लेकिन वो सब मरीज हमारी उनकी डेथ हो जाती थी। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि इतनी ज्यादा प्रयोग में आएगी, उतना अच्छे हम लोग रिजल्ट स्किन ग्राफ्टिंग के बाद हम मरीज को दे सकते हैं, और बहुत से ज्यादा परसेंटेज के बर्न्स, 80%, 90%, इस तरह के बर्न्स को भी हम लोग फिर से हम संस्थान को, मैं KGNU में था प्लास्टिक सर्जरी में, वहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने डायरेक्टर साहब को, यहाँ के, और उनकी टीम को, जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया, और आप सब लोग को, और आप लोग के माध्यम से बाकी को भी जागरूक करने का प्रयत्न किया। थैंक यू सो मच। अभी हम सवाल जो है वो किसी के भी कोई सवाल है तो लेकिन किसी का भी कोई सवाल है तो वो प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैं अप्रोप्रिएट पैनलिस्ट के पास उसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम A.K. गुप्ता है और हम लक्ष्मी नारायण मंदिर से आए हैं, और हम एम्स के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, इन सब पे काम करते हैं, और कॉलेज में करते हैं कि ऑर्गेनाइज 7-8 इवेंट्स इन द ईयर वेरियस कॉलेज। तो मेरे एक इसमें सवाल है
और एक इसमें सुझाव है। सुझाव तो मेरा ये है कि जब आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन पे हम अवेयरनेस सेशंस कराएं, उसमें स्किन डोनेशन का भी आप ऐड करें और उसके बारे में भी आप उसमें सेशन में बताएं जो आपके काउंसिलर कोऑर्डिनेटर क्या है, तो उससे लोगों के अंदर जब जागरूकता आएगी तभी उसका डोनेशन हो पाएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम 8-10 कॉर्निया डोनेशन करा चुके हैं और कॉर्निया के लिए हमें नेशनल आई बैंक में या ऑर्गन डोनेशन ऑर्डर के अंदर करना पड़ता है। तो जब हम कॉर्निया डोनेशन के लिए अगर नेशनल आई बैंक में करेंगे तो कैंप ये आस-पास के भाई स्किन डोनेशन भी करेंगे या हमें कहीं और आपको फोन करना पड़ेगा? हमारे हिसाब से ये एक सिंगल विंडो होनी चाहिए जिसमें आई डोनेशन, स्किन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन एक जगह पर हो। जो करना चाहे वो करे, बजाय कि ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑर्गो पे करे, आई डोनेशन के लिए नेशनल आई बैंक में करे और स्किन डोनेशन की कोई और बैंक। सर दोनों आपके जो सुझाव है, मैं पहले डायरेक्टर साहब से चाहूँगा कि वो सिंगल विंडो के लिए सर का जो विजन है वो बताएंगे और फिर मैडम नंबर बताओ। 100 बता देता हूँ। नंबर तो सर आप एक बार आश्वासन देंगे तो हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड सजेशन सर। आई थिंक वी विल लुक इनटू दैट। इट्स वेरी डेफिनेटली इम्पोर्टेंट एंड मे बी दिस हैज टू गो टू द पॉलिसी मेकर्स आल्सो and at least for the institute we should have, we should have the, in fact it's a single window because Orbo helpline will be a single window only because it is whether it is for the organ donation or body donation, now the skin donation. I think it's a single window. What sir is saying is that for the whole country we should have some number which should be 3 digit or 4 digit or some common number which will be very common to the anybody who wants to donate anything, whether it is body donation, organ donation, cornea donation, skin donation, bone donation. I think it's a very good suggestion. डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मैं उसका आंसर दे सकता हूं काउंसलर में जो सर ने बोला है कि हमें जो छोटा सा प्रोग्राम है हमको एक्स्ट्रा सेशन जो रखना है स्किन का। बहुत अच्छा सुझाव है। हमारे काउंसलर्स अभी स्किन के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे इन हाउस स्किन बैंक अभी चला नहीं था। अब जब हमारा स्किन बैंक लाइसेंस मिल जाएगा और शुरू हो जाएगा तो ये पार्ट भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में ऐड हो जाएगा। ऑर्बो की हेल्पलाइन है और अभी कॉर्निया के लिए क्या है कि ऑर्बो की हेल्पलाइन में इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कॉर्निया डोनेट करना है, पर अगर ये टेक्निकल है तो हम आई बैंक को इन्फॉर्म करते हैं और आई बैंक उस एड्रेस पे जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे अडॉप्ट होगा। जैसे कोई स्किन डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट आएगी, हमारे यहाँ पे राउंड द क्लॉक हम रोस्टर बनाएंगे स्किन बैंक में, स्किन बैंक के ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, वहाँ से दे विल टेक ओवर टेक्निकल पार्ट। रेस्ट एश्योर्ड दिस विल बी टेकन केयर। As far as we are concerned, we are only removing skin for the purpose of donation after death. Okay, that's right. Regarding awareness, there are a lot of awareness activities happening at the national level, Delhi level also, at AIMS, a lot of work is being done, और वो के coordinators भी बहुत जगह हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं वीकली बेसिस में वो हो रहे हैं, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, RWS में, मॉल्स में। इनफैक्ट हम अभी एक ऑर्गन डोनेशन वीक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जहाँ दिल्ली हाट, साकेत मॉल, एम्स, बहुत सारे जगह पे इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम। Any other? मैडम। मैं मंजू जगदीशी देवदान समिति से सबसे पहले डॉक्टर मनीष को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी कि लेमैन की भाषा में आके इन्होंने इतने क्वेश्चंस तैयार करके रखे कि हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। पर फिर भी मैं, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं, तो अगर हम एक बार ये सब भूल जाएं कि हमारा नेटवर्क है, एक कॉमन नंबर है, हमें काम करते हुए अनुभव आता है कि हमने अगर आई डोनेशन करना है और हम कंसर्न जगह पे खड़े हैं और हम उन्हें कहते हैं और उन्होंने हाँ कर दिया और हमारे पास फ़ोन नंबर है, चाहे वो एम्स का है या उसका एक रोजाना का सेंटर का है, जहाँ का भी है, हम एक कॉल करते हैं और इमीडिएट आधे पौने घंटे में डिस्टेंस के हिसाब से टीम आती है और वो काम हो जाता है। स्किन बैंक के लिए इस व्यावहारिक पक्ष को देखते हुए क्या हम कोई एक फ़ोन नंबर दे सकते हैं जिसमें हम इमीडिएट कुछ कर सकते हैं? क्योंकि जब हम उस पर जाते हैं तो एक के बाद दूसरा वो थ्रू वाला चैनल बनता है और वो से भी जो बनेगा तो वो थ्रू वाला बनेगा। तो क्या जितना इजी आई बैंक का सिस्टम है उतना ही इजी हम लोगों ने स्किन बैंक का किया है। नंबर 2, हमने अभी तक क्या घर जाके स्किन हार्वेस्ट की है
की है तो कितने नंबर की है? थैंक यू। देखिए, आपका पहले दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। हम चूँकि हमारा बैंक की नीति है तो हार्वेस्ट करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन हमारी पूरी टीम जो है वो करीब 13 लोगों की टीम चेन्नई जाके पूरी ट्रेनिंग लग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ के आई है। हालांकि हम सब प्लास्टिक सर्जन है, स्किल की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ क्या प्रॉब्लम आएंगी घर में जाके वो सब हमने जितनी समझ सके थे हमने समझी हैं। और प्रैक्टिकल हमारा एक्सपीरियंस है, पर हम चूँकि हम सब लोग 5-5 हज़ार सर्जरी कर चुके हैं और बड़ी बड़ी सीनियर टीम है और हम पे 30 लोगों की टीम है जो कि प्लास्टिक सर्जरी में जिनकी महारत है, तो कोई ऐसी समस्या हमको स्किल की आनी नहीं चाहिए। सोशल इशू में नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो आपकी मदद से हम कवर कर सकते हैं। और जहाँ तक सिंगल नंबर की बात है, तो एक जो भी ऑर्बो का प्रोटोकॉल है कि एक बेसिक स्क्रीनिंग अगर हो जाती है कि प्लास्टिक टीम जाने के लिए तैयार है, तो हमारे 2 बैग ऊपर रेडी होते हैं और हमारी यही इच्छा है कि हम इस प्रोग्राम को चलाएं और उसको सक्सेसफुल करें। तो चूँकि हमारी चेष्टा ये है कि सक्सेसफुल हो, तो हम आधा पौना घंटा तो नहीं हो सकता कि हम 15 मिनट एक्स्ट्रा लें सपोज़, लेकिन हमारी यही कोशिश होगी कि हम भी इसमें कहीं पीछे ना रहें। और चूँकि हमने जैसे बताया है कि हमको आई से पहले स्किन निकालनी है, तो एंड गोल हमारा ये हो कि हम उनसे पहले पहुँचें। अब कैसे होगा ये मैं नहीं कह सकता, बट हमारी इच्छा पूरी रहेगी और हम पूरी चेष्टा करेंगे इस चीज़ के लिए। थिंग्स सर एंड ऑल माई पैनलिस्ट एंड ऑल द ऑडियंस, पर्टिकुलरली आई थिंक वी शुड हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द क्वेश्चंस हु हैव आस्क्ड। थैंक यू।